I love the teeth. You have never had better teeth in any film in your life. Have you thought of that? Absolutely. And obviously, it's an extension of your teeth. So you've got to be very mindful of when you want to reveal it and when you don't. Because sometimes it could come through even when you're normal, right? That's my कभी question. कभी चुप भी जाता था यहाँ पे ऐसे करते करते मतलब it looks very odd right now but imagine a Betal doing this with It like would be one like a big 60s canine. film villain. 60s Yeah. film villain used to look at the heroines like that. Everybody's method is different Yeah, and sure. there's no right wrong, there is no one size fits all in acting or performing. 21st of October, get ready to celebrate Diwali with Thama, Ayushman Khurrana, and Azdin Siddiqui are with me. And from me, Rishi K, I cannot wait to watch the magic that these two are going to bring together. How are you guys? Wonderful to see you. We are wonderful. आपकी इंट्रोडक्शन सुन के और वंडरफुल हो गया. नवाज भाई बचपन में, हमारे बचपन में, पता नहीं आपके बचपन में, नहीं मेरा भी वही होगा. इतना फर्क नहीं है आपको लग रहा है. हमारा तो बुढ़ापा आ गया, आप तो अभी भी जवान है. हम देखते थे विक्रम बेताल सीरीज और मुझे याद है बिल्डिंग में अगर जाते थे नीचे तो सारी फ्लैट्स में वही विक्रम बेताल बजता था जैसे कि रामायण और महाभारत का होता था. एंड आई रिमेंबर अरुण गोविल जी was playing and he was playing Ram also and he was playing that and it was a fantastic character और उसका साउंड ट्रैक होता था विक्रम विक्रम बेताल ऐसे विक्रम और बेताल. ये देखिए गायक सिंगर विक्रम देखा आपने. हाँ course. हाँ, तो उसके क्या आज भी मैं सोचता हूँ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ. बेताल का जो वो जो होता था ना वो कंधे पे बैठ के और ये मैं बात बताऊंगा ये वो फिर अपना ऐसे ऐसे करके उड़ता स्पेशल उस जमाने के स्पेशल इफेक्ट थे और हंसता था जोर जोर से हा राजा बहुत पुराने कोई एक्टर थे. उनका नाम नहीं याद आ रहा था. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. व्यास सरनेम है उनका आई थिंक. Could it be the one who did I'm Not Bajirao with Baman Irani? I don't know. He was also Mr. उनके Vyas. पोते ने ना हमारी स्क्रिप्ट लिखी है फॉर इंडियाज गॉट टैलेंट जब मैं What are you anchor करता saying? Yes. Yeah, amazing. Yeah. Yeah. You know, Ayushman, this is wonderful because you have said many times this is a Diwali release. It's you happening, but I love the teeth. You have never had better teeth in any film in your life. Have you thought of that? Absolutely. And tell me, was it just an attachment or is it a prosthetic? Because it looks beautiful. देखो we had two options. Yeah. There was this prosthetic also जो ये लगाते थे और मैं अटैचमेंट लगाता था कि प्रोस्थेटिक में ग्लू लगती थी तो ग्लू का टेस्ट मुझे डिस्टर्ब करता था. तो मेरे पास अटैचमेंट थी, इनके पास प्रोस्थेटिक थी. वी हैड बोथ द ऑप्शंस सो आई वेंट विद द अटैचमेंट. And obviously, it's an extension of your teeth. So you've got to be very mindful of when you want to reveal it and when you don't. Because sometimes it could come through even when you're normal, right? That's my question. कभी चुप भी जाता था यहाँ पे ऐसे करते करते मतलब it looks very odd right now but imagine a Betal doing this with It would be like a big 60s canine. film villain. 60s Yeah. film villain used to look at the heroines like that. Beautiful. गाने सुने ही होंगे आपने. बहुत ही खूबसूरत गाना है रहे ना रहे हम, which is सचिन जिगर और बहुत खूबसूरत गाया भी है उस लड़के ने. तो tell me your thoughts about that song. बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग और वो भी तुम मेरे ना तुम मेरे ना हुए ना सही. Yeah. और जो उस पे डांस है जो You know मैंने इतना नहीं कि वो you've got वो आती है एक एनर्जी आती है उस वाले में. yeah. You know you got your A game on as far as the dancing is concerned, brother. And तुम मेरे listen I've not danced much. There's just one section I've danced and the rest I'm just there. Yeah, and she's dancing, I'm looking at her. Just like more of the chemistry happening there. But my question to you is this. I mean, have you ever thought if you had sung Rahe Na Rahe Hum, which actually is sung by Soumyadeep Sarkar, how it would be? I mean, I'm just visualizing. यार अगर प्रमोशन से मौका मिले तो I would love to do a reprise version of this one. Why don't you do a couple of lines for us now, yeah? I know I'm putting you on the spot, but Yeah, right now I'm not prepared. I've never sung that song. yeah, but it's a haunting melody. Yeah, it isn't is. Yeah. It is. And even the dance song, when I look at it, it's got a haunting groove to it. Rashmi is looking so beautiful. Talk to me about that one. Yeah, Rashmika is a natural on screen. I think she's a tremendous performer. She gives 100%. चाहे हिंदी उसकी पहली लैंग्वेज नहीं है, still she nails the language also at the same time. And she has that peculiar look, जो
हमारे थामा कैरेक्टर को सूट करती है. And you will get to know when you watch the film. She has a very strong look in the film, and that's her eyes speaks volumes. And at the same time, ये मुझे लगता है ये गाने में जो है जो इसका हमारा एंड क्रेडिट सॉन्ग है, तुम मिले ना सही. This is very different for Rashmika because अभी तक रश्मिका ने बहुत देसी गाने किए हैं. This is slightly westernized tune and melody. So I think it's very refreshing to see her do that. And Sachin Jigar as a musical duo, to me what fascinates me about them is that they're able to take various styles and amalgamate it. They're known most for their ballads, but the dance music also is quite moving. Sachin Jigar is the duo is the number one composer duo in the country right now. जितने bangers, chart busters वो दे रहे हैं कोई नहीं दे पा रहा. And consistently, of course बीच में आते हैं जाते हैं, but they've been consistent with this. I think पीछे परम सुंदरी का उन्होंने गाना दिया था which was trending, and now we have these 3 bangers which have come out. रहे ना रहे हम, the latest one. So they are very versatile as composers. हर एक composer का एक zone होता है, पर इनके सभी zone हैं. So that's what makes them very successful. नवाज भाई, मैं आदित्य से मुंजिया के टाइम पे और काकुदा के टाइम पे मिला था और आई फाउंड हिम वेरी फैसिनेटिंग. फिल्मी परिवार से है, बहुत रिच कल्चर है, उसके बापज़ादा के ज़माने से वो लोग फिल्में बना रहे हैं और हमेशा ऐसे लोगों से मिलके एक तो काम करना होता है, उनसे ऑफ द स्क्रीन भी बात करना बड़ा अच्छा लगता होगा. तो ज़रा आदित्य के बारे में बात कीजिए और उनके साथ जो इंटरेक्शंस थे, टेल मी अबाउट दैट. अभी हम लोग डबिंग भी कर रहे थे उस वक्त भी हमारी बातें हुई थी. वो थिएटर बैकग्राउंड से भी हैं, मतलब थिएटर के बहुत सारे एक्टर्स हैं, मराठी एक्टर्स, हिंदी एक्टर्स जिनके बारे में जानते हैं. तो काफ़ी नॉलेज है उनको अबाउट द परफॉर्मेंस, फिल्म्स, मूवीज़, ये वो सब. इवन बाहर की मूवीज़ के भी बारे में काफ़ी नॉलेज है उनको. और आप सोचते हैं कि इस जॉनरा पे उनकी पकड़ अब एकदम मजबूत है? ऑफ कोर्स. आई मीन शूट करते हुए वक्त भी पता चलता था हम लोगों को कि यार वो पूरा एक एक चीज़ अगर कहाँ पे ये सब करना है हमें, कहाँ पे करेक्ट टाइमिंग कहाँ है उसकी, यानी कि हर जगह पूरा डिज़ाइन था उनके दिमाग में, पूरी कैरेक्टर डिज़ाइन तक था. You know, Ayushman, in horror, sound plays a very important part. And that's where it's very tricky for actors. For example, Stanley Kubrick used to say that if I had to jump scare an actor, along with my camera trolley, I'll have a speaker where the soundtrack will play and the sound will come. Vikram Bhatt has told me the opposite. He said, boss, when I make horror, I don't want sound. I want the actor to react naturally and then in the edit, I'll sort the sound out. What was Aditya's approach to filming this in terms of the jump scares and some of the scary parts? I think everybody's method is different, Yeah, and there's no right wrong. There is no one size fits all in acting or performing. कुछ लोग मेथड एक्टर होते हैं, कुछ इम्प्रॉम्प्टू स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स भी ऐसे होते हैं कि जब सेट पे पहुंचते हैं तब डिसाइड करते हैं कि पहले से डिसाइड करके आते हैं. सो आई थिंक इट्स एवरीबडी हैज अ डिफरेंट मेथड. तो बट आदित्य, एज यू मेंशन दैट ही इज़ फ्रॉम अ फिल्मी फैमिली. 100 साल पहले उनके परदादा ने फिल्म बनाई थी और वो भी आई थिंक एक हिस्टोरिक फिल्म थी जो बनाई थी उन्होंने. एंड बाय द टाइम ही वाज 17 ही वाज assisting someone in like Telugu industry in Hyderabad Ramoji Rao studio. Wow, I didn't know that. Yeah, so he has lived cinema. He's done theatre, very rich in culture, heritage, historically very blessed. मतलब तो उनको ना ये वर्ल्ड बनाना बड़ा अच्छा लगता है. चाहे वो मुंजा का वर्ल्ड था या थामा का वर्ल्ड था या उनकी पहली फिल्म का वर्ल्ड था. ही इज़ अ नर्ड, ही इज़ अ गीक, बहुत मेहनती हैं. एंड every director is different and I go with the process of the director and somewhere in between we marry कि कहाँ पे ये मेरा process है आपका process, चलो बीच में कहीं आ जाते हैं. So that's a lot of fun. And I find it very fascinating that Dinu, which is Dinesh Vijayan, is so invested in these horror comedies and has made such a wonderful success out of them. Because if you look at it, it's a very, very difficult genre, Ayushman, because comedy as it is difficult. You could argue that in India, we watched horror from the Ramsey Brothers days, but it was Tacky Blood, Z Horror Show and things like that. But to combine that and make it so interesting is a very rare quality. Talk about that, please. यार मैडॉक ने हॉरर जॉनर को एक दर्जा दिया है, एक रिस्पेक्ट दी है. इसमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी जो जोड़ी है और साथ में इंडियन फोकलोर का जो एक I think that's also fascinating. That's the most fascinating part क्योंकि it has given lot of respect to this genre. पहले हॉरर जॉनर में काफ़ी स्लीज भी होता था,
कॉमेडी नहीं होती थी। उसको एक ऐसे, हाँ ठीक है यार, ऐसे होता था। तो आई हैव माई पर्सनल फेवरेट्स एज अ किड, बिकॉज मेरे को वीराना देख के बहुत डर लगता था, हॉरर शोज देख के बहुत डर लगता था टेलीविजन पर। बट इस तरह का सक्सेस अनप्रेसिडेंटेड है व्हेन यू मेक लाइक बिगेस्ट हिंदी फिल्म एवर, हॉरर कॉमेडी। तो दैट गेव विंग्स टू दिस यूनिवर्स। तो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स इज द बिगेस्ट यूनिवर्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा for me, and Thama is the next chapter, and I'm really proud to be part of it. Would you say part of the trick is to keep the horror and the scaring different from the delivering of comedy lines? The actors also have to be very aware कि अब मैं comedy zone में घुस रहा हूँ और I'm staying in the horror zone. Thama में horror कम है वैसे। It's a दिवाली रिलीज, परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर, बच्चे भी enjoy करेंगे क्योंकि इसमें horror सिर्फ दांत हैं, जंप स्केयर्स होंगे, but it's not like स्त्री horror Lovely. और मुंजिया horror. So you'd like the kids to come. Yeah, Absolutely, wonderful. it's a perfect family entertainer. It's more of comedy, romance, action. Horror, of course, दांत हैं, उतना ही horror है कि बच्चे भी देख सकें। इन्होंने एक बहुत ज़रूरी पॉइंट अभी रखा फोकलोर के बारे में। बचपन में दादा दादी हमें अगर कहानियाँ सुनाते थे तो फोक टेल्स की कहानियाँ होती थी, चाहे वो बीरबल की हो या अकबर अमर चित्रकथा की हो। और हॉरर में चुड़ैल हमेशा एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रहा है हमारे कल्चर में। तो ऐसी कुछ बचपन में कुछ भयानक कहानियाँ आपको सुनाई गई जो अब सोच के बड़ा मज़ा आता है। जैसे जी हॉरर शो की बात कर रहे थे, हम लोग कंबल के नीचे छुप के देखते थे, देखते ज़रूर थे एक छेद के थ्रू। सो फोकलोर का होना इन अ हॉरर, इंडिया की फोक टेल्स से ड्रॉ करना, हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज़। एक्चुअली जैसे हम लोग का भी था कि लाइक ये दंत कथाएं या फिर फोकलोर जो ये इनके बहुत लिखी गई हैं एक्चुअली, लेकिन इस पैमाने पे कभी फिल्म नहीं बनी उन फोकलोर्स को लेके। पर आई थिंक ये पहला अटेम्प्ट है कि अगर आप जब फिल्म देखते हैं तो आप एक उस वर्ल्ड में चले भी जाते हैं और वो लगेगा आपका वर्ल्ड है वो। हाँ, एंशिएंट टाइम का एक टाइम रहा होगा ऐसे उस वक्त पे। तो हमने जैसे दादा दादी नानी से भी कहानियाँ सुनते थे, वही कहानियाँ होती जो ऑलरेडी दंत कथाओं में होती थी, वही कहानी वो सुनाते थे। बाद में जब पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने तो अरे हमारी नानी ने तो ये कहानी सुनाई थी, तो है ऑलरेडी बुक्स में है ये ऑलरेडी। तो बट हमने कभी इस चीज़ को ना इतना बड़ा दर्जा नहीं दिया। ये पहला अटेम्प्ट है मुझे लगता है कि जहाँ पे फोकलोर्स को लेके और उस वर्ल्ड को दिखाने के लिए इतना बड़ा वो किया है। वेरी वेल सेड। लेट्स कम बैक टू द म्यूजिक। अमिताभ भट्टाचार्य टू मी इज अ वेरी यूनिक राइटर। Yeah. I think all of us are a reflection of the culture we come from, and I find it fascinating that he's a Bong who grew up in UP, in Lucknow, and you know, to bring that Eastern culture with the Northern culture. Some of his lyric writing for Amit Trivedi's music compositions have been wonderful. His lyric writing for Sachin Jigar have been wonderful, and lines like this, you know, "Rahe na rahe hum," are really wonderful lines. Talk to me about him as a lyricist, or any lines that you like in these songs which lyrically appeal to you, Ayushman. I really believe when a person is born or brought up in a state which is not the aborigine state of that person is very fortunate. Well said. क्योंकि आपकी कल्चरली आप इतने रिच हो जाते हैं। जैसे आप तमिल हैं, आप भी यूपी में पले बड़े हैं, Correct. तो Yeah. आप अपनी तमिल कल्चर लेके आ रहे हैं, यूपी का कल्चर ले रहे हैं, और आपको 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं आसानी से, 4 लैंग्वेजेस। मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में पला हूँ, फिर बॉम्बे आ गया, बॉम्बे में सीख रहा हूँ काफ़ी कुछ। विकी कौशल जैसे हैं, वो पंजाबी है, मराठी भी थोड़ी बहुत बोल लेता है, मुंबई का है। भूमि पेडनेकर, पापा हरियाणा से, माँ हरियाणा से, पापा मराठी, यूपी की लैंग्वेज बोल लेती है। सो आई थिंक ये इतना फ़ायदा होता है। अमिताभ भट्टाचार्य का वही है बंगाली, यूपी में है, हिंदी उर्दू पे पकड़ है। बंगाली वैसे बहुत कल्चरली रिच होते हैं, टैगोर की जगह है। तो वो जो लेके आते हैं ना फिल्म, कोर्क लेके आते हैं या फिर शायरी लेकर आते हैं, वो हर तरह के गाने लिख सकते हैं। That's the beauty of it. Beautiful, yeah. Exactly. What a thought, you know. And what is the word you use? The aboriginal, no? The original place. It's amazing. मतलब लोग कहते हैं ना कि वो आदिवासी हैं। आदिवासी मतलब क्या है? वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे वहाँ के। वहाँ से उनको निकालो, अच्छी बात नहीं है, बट देन दे ग्रो। तो उसके बारे में थोड़ा आप भी, मैं चाहता हूँ कि अमिताभ भट्टाचार्य जैसे एग्जाम्पल लेके कि जो मिश्रण होता है अलग कल्चर्स का, उससे पोएट पैदा होते हैं। Exactly, of course. You know? Any line that you like in the songs or the movie or the
मैं तो लिरिक्स, दो तीन गाने अभी तक मैंने सुने होते हैं, अमेजिंग सॉन्ग्स हैं। जरा लुक की बात करते हैं, हैं? जरा लुक की बात करते हैं। बेताल का जो लुक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेकअप में कितना बैठना पड़ा, हाउ मेनी आवर्स? बहुत एक्चुअली बहुत ही टाइम लगता था, और स्पेशली जो हाथ लगाते थे ना, वो 2 या 3 घंटे के बाद ना उसमें बड़ा इचिंग होने शुरू हो जाती थी, और ये जो बोन्स की जो जॉइंट्स हैं इसमें पेन होने लगता था, तो उसको थोड़ा ब्रीदिंग के लिए थोड़ा निकालना पड़ता था। वो बहुत था तो डिफिकल्ट, बट अच्छा है लुक, जब अच्छा आता है तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। Lovely. Let's talk of Paresh ji. You know, I like the fact that you really are representative of an actor who has chosen the most remarkable scripts all your life. Paresh ji, on the other hand, in his early part, and he says it himself, when he started off his career, he just did a lot of stuff that was just given to him, you know, because those days never thought of those intensely about scripts and padhne, yeah, boy. And senior actor, you're still, even though you've been around for 10 years, you're the young Turk. I'm very excited to see the two of you on screen. Are there enough scenes? How is it interacting with him? This is my second film with Paresh Rawal. First was Dream Girl 2. Yeah. My last film. Correct. And he's of course, बोलने की जरूरत नहीं, he's a legend of an actor. कॉमेडी के किंग हैं वो। कॉमेडी के पहले उन्होंने शुरुआत तो विलनस रोल से की। Correct. जब उनको डिस्कवर किया कि कॉमेडी भी कर सकते हैं, एवरीबडी वाज लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। इसमें ही इज प्लेइंग माय फादर एंड लाइक अडोरेबल, एंडियरिंग, रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर। तो और काफ़ी ऐड भी किया उन्होंने फिल्म के अंदर, एक एनर्जी लेकर आए हैं। दो ही इज द ओल्डेस्ट इन आवर फिल्म इन टर्म्स ऑफ एज, बट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ही इज द यंगेस्ट आई थिंक। And you can't now think of them as legendary actors when you're doing a scene, right? Otherwise, you got put pressure on yourself. You just have to look at his dad. तब आप फिर दोस्ती की तरह होती है, वो तो गिव एंड टेक मोमेंट्स होते हैं फिल्म के अंदर एज को एक्टर्स। एंड हाँ, वो पापा वाली छवि आ जाती है फिर फिल्म के अंदर, एंड वो मुझे बोल रहे हैं, मैं उनको कुछ बोल रहा हूँ। सो आई थिंक वो रियल लाइफ सिचुएशन से भी काफ़ी प्रभावित होता है। बट परेश जी इज़ परेश जी, अलग ही है वो। अलग ही है, well said. और कैसा लगा आयुष्मान और आप? I mean, it's wonderful to have you both sitting on this couch and talk to you. You know, such fine actors of your generation. आप दोनों ने हिंदी सिनेमा के लिए कितना कुछ किया है, सिनेमा ने भी आपके लिए किया है, बट लगता है कि भाई इस आदमी के साथ काम करते रहना चाहिए। ऑफ कोर्स, और जो हमारे सीन भी थे बड़े स्मूथली निकले, वो बड़ा मज़ा भी आया। एंड बहुत डिफ़िकल्ट सीन्स भी थे हमारे, और फनी सीन भी थे, तो सब में बहुत मज़ा आया आयुष्मान के साथ। तो आपको लगता है कि थामा इज अ डिफरेंट साइड ऑफ आयुष्मान? ऑफ कोर्स, या इसके पहले कोई फिल्म हो उनकी जो व्हिच यू रियली एंजॉयड? व्हाट इज इट? आई थिंक मैंने तो ज़्यादातर मूवी इनकी एंजॉय करी है, क्योंकि ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर ऑफ कोर्स। क्योंकि पहली मूवी से ही इन्होंने दिखा दिया था, पता चल गया था कि यार बंदे में कुछ तो है, दम तो है। विकी डोनर से आप नोटिस कर रहे हैं? हाउ लवली। एंड फॉर यू, रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट। हमारा जो है ना, जो एक राइज टू फेम जो है स्टार्टअप, वो एक ही साल में हुआ है। विकी डोनर और गैंग्स ऑफ वासेपुर एक ही साल में रिलीज। करेक्ट, एक्चुअली, या तो वाओ। इन्होंने विकी डोनर देखी होगी, मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी। उसके बाद में लंच बॉक्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत एंजॉय की, क्योंकि लंच बॉक्स में इतना कुछ करने को नहीं था, लेकिन फिर भी इतना स्टैंड आउट कर रहे थे, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। एंड दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल। आई मीन यू मस्ट, I mean, I can't wait to see any of those scenes between the two of you. और एक बार मैंने नोटिस की थी कि एक्टर के साथ काम करने में बड़ा मज़ा इसलिए आता है कि आपको सामने, अगर आपके को एक्टर, आपका एक्टर सामने अच्छा है ना, तो आपको सिक्योर करता है कहीं ना कहीं, यू नो। और थोड़ा सा अगर वैसा हो रहा तो आप खुद इनसिक्योर हो जाए। जब सामने अच्छा एक्टर हो तो आप ऐसा लगता है यार बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है, सिक्योर कर रहा है ये मेरे को, अगर कोई गलती भी होगी मेरे से संभाल लेगा, ऐसा फील। How beautiful, how beautiful. बड़ी बात है। Last question, both of you, Diwali plans, you know, what are your plans? I hope you're not working or promoting at least on Diwali day or one day before. Okay, this is the first time I'm not going to Chandigarh for Diwali because of this, but this is going to be the biggest Diwali because Thama is releasing on Diwali. Lovely. So I'm very excited about it. I have no complaints कि चंडीगढ़ नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि दिवाली में पहली बार, भाई सारी फिल्में छोटे बजट की, मीडियम बजट की होती है, पहली बार तो बड़े बजट की फिल्म कर रहा हूँ, which is like Yeah, but there will be a puja at home with Tyra and the kids, right? Yeah, and that'll happen. Of course. You do a small the little family's puja flying and down this and also from Chandigarh, so lot of fun. that. Are you good with cards? I can't even hold cards. I can't. मेरे घर में कोई कार्ड्स खेलता नहीं। शगुन के लिए भी नहीं। कुछ नहीं, मुझे आते नहीं कार्ड्स खेलने। ये जो फिल्म और हम एक ही बोर्ड पे। इससे बड़ा जुआ क्या हो सकता है कि हम एक्टर बन गए लाइफ में।
What about you? Your plans? मेरा हम दोस्त यार हैं तो उसके क्या बात? जाएंगे घर पे उनके खाना पीना. खाना पीना। Yeah. बचपन में पटाखे भी फोड़े होंगे. बहुत। है ना? हाँ। रॉकेट जो ज्यादा पसंद है कि दिए लड़ी? हैं। लड़ी ज्यादा पसंद है कि रॉकेट? मुझे तो खैर लड़ी ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ये दिवाली के टाइम पे मेरी आँख पे लग गया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये अभी भी निशान है उसका, तो मुझे तब से डर लगता है वो। लड़ी है, लड़ी से लगा नहीं ऐसे रॉकेट नहीं, से? वो कुछ रॉकेट था वो, अरे बाप रे. तो किसी ने छुड़ाया, बच्चे ने बोतल में डाल के ऐसे, वो बोतल ऐसे थी और मैं सामने था। अरे रे रे आग रे लगे, रे रे टक से सीधी मेरी आँख में, तो ऐसा हुआ था। थैंक गॉड आग बच गई आपकी बंद. बच गई, थैंक गॉड। That's a very, very good reason why we need to have a safe Diwali. I think the best thing to do this Diwali is to watch Thama, 21st of October. Thank you, Ayushman. Thank you, Nawaz bhai. Cheers. Thank you so much. 94.3 Radio 1.